Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, today I am going to talk about John Galsworthy's play, The Silver Box. John Galsworthy was born in 1867. He was undoubtedly one of the finest dramatists of his time. Galsworthy travelled at different places during the period 1819 to 1903. It was a period of advanced industrialization in the Western world. As a consequence, various social problems arose, just like the problems of labor and capital, slum life, women's slavery were prevalent in the air. Galsworthy wrote many novels, plays, and short stories. His first successful novel was The Island Parises. His novels present a faithful picture of vanished world. The novels also show his compassionate sympathy for the poor and oppressed, although he never understood them as well as he understood the rich. Galsworthy was a dramatist of considerable technical skill. His plays often took up specific social grievances such as the double standard of justice as applied to the upper and lower classes in the silver box and the confrontation of capital and labor in the play strife. Okay. The silver box is a three-act play. This is the first play by John Galsworthy. It was originally produced in London in 1906 and attracted much attention. In this play, the disappearance of a cigarette box, okay, that is the silver box. What is silver box? Silver box is a cigarette box made of silver. Okay, so in the play, the disappearance of a cigarette box, that is the silver box, leads to a comparison of the behavior of the son of a prosperous politician with that of an unemployed man and the exposure of attitudes of different social classes. ओके इस जो प्ले में क्या बताया गया है कि जो डिसअपियरेंस है यानी कि जो सिल्वर बॉक्स जो गायब हो जाता है, चुरा लिया जाता है, तो उसकी जो स्टोरी बनती है, जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, जो सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो उसमें बताया गया है कि जो एक प्रॉस्परस जो पॉलिटिशियन होता है उसका जो बेटा होता है उसमें और एक अनएम्प्लॉयड एक बेरोजगार जो मैन होता है, ओके इन दोनों में कंपैरिजन बताया कि दोनों ही कहीं ना कहीं ऑफेंस को कमिट करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो एटीट्यूड होता है, जो सोशल क्लासेस, एक अपर क्लासेस और लोअर क्लासेस का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है, क्योंकि दोनों को सज़ा नहीं मिलती है, सज़ा किसी एक को ही मिलती है। पनिशमेंट सिर्फ अनएम्प्लॉयड जो पुअर होता है, जो लोअर क्लास होता है, उसी को वो पनिशमेंट दिया जाता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएशन बताया गया है between the poor and the rich and the poor and the rich, the higher and the lower. The theme of the play is the idea that there is one law for the rich and another law for the poor. कि यहाँ गरीब के लिए कुछ और नियम होता है और जो अमीर है उसके लिए कुछ और कानून होता है. The Silver Box is a bitter play. Through the character of James Jones, Galsworthy criticizes the British society in which the rich are favored by law and justice is done to the poor. ओके जिसमें जो इस ब्रिटिश सोसाइटी को उसने क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है उसकी, कि जिसमें जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उन्हें उनका जो लॉ है, कानून उनका फेवर करता है, और जो गरीब जो लोअर क्लास होते हैं उनको पनिश किया जाता है. In other words, the play shows that if a rich man and a poor man commit the same offense, okay, कि यदि कोई रिच और जो पुअर है जो दोनों ही सेम ऑफेंस करते हैं, सेम उनका जो अपराध होता है वो सेम होता है, द रिच मैन एस्केप्स द पनिशमेंट वाइल द पुअर मैन इज़ पनिश्ड बाय द लॉ. तो जो रिच मैन होता है, जो अमीर होता है, वो तो बचकर निकल जाता है, उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती है, लेकिन जो पुअर होता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है. Such is the power of wealth and money in our modern society.
Okay, so in this story, John Galsworthy shows or explores the differentiation between the lower and the higher, the poor and the rich. Okay, what is the story about? Actually, there are some important characters in this play. John Barthwick, okay, who is an MP, a wealthy liberal. Mrs. Barthwick, his wife. Jake Barthwick, their son. मिसिज जॉन्स देयर चार-वूमन मैड सर्वेंट, उनकी नौकरानी है मिसिज जॉन्स। जॉन्स एंड अ स्ट्रेंजर, स्नो अ पुलिस डिटेक्टिव, मार्लो एंड व्हीलर दे आर सर्वेंट। ओके, सो द स्टोरी बिगिंस विद जेक बार्थविक। ओके, ये जो इसकी जो स्टोरी है, जो प्ले है वो शुरू होता है जॉन बार्थविक से। ओके, अ यंग मैन ऑफ अ रिच मिडिल क्लास फैमिली। ओके, इस प्ले के जो द प्ले स्टार्ट्स और बिगिंस विद जेक बार्थविक, अ यंग मैन ऑफ अ रिच मिडिल क्लास फैमिली। हिज फादर जॉन बार्थविक इज अ वेल्दी मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी and also a member of parliament. One evening, Jake Barthwick goes out and drinks wine. वो बाहर जाता है और वाइन पीकर आता है. Then he spends some hours in the company of a lady. किसी एक स्ट्रेंजर जो लेडी है, एक अजनबी महिला के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड कर आता है. ओके, उसका जो बेटा है जेक बार्थविक, जॉन बार्थविक का. Okay, then he spends, the lady is cunning woman, okay, as she eats and drinks at Jake's expense, but she does not give him any lift in the direction of love making. she doesn't give him any response, उसे कोई response नहीं देती है, बस generally she just eats and drinks at his expenses. Jake is badly drunk, so by way of revenge he snatches away her handbag. ओके, जब वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, लिफ्ट नहीं देती है, तो उसे एक गुस्सा आता है, उस एंगर में, उस रिवेंज में, बदला लेने की भावना से में वो क्या करता है, उसका हैंडबैग छीन लेता है. इट कंटेन्स हर पर्स ऑफ रेड सिल्क एंड हर हैंडकरचीफ. उसमें उसका पर्स रखा हुआ होता है. Then he comes back home, but he is unable to unlock the door of his house because of being badly drunk. Okay, वो अपने घर का लॉक नहीं खोल पाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है. Then a poor man called James Jones helps him to unlock the door. Okay, एक पुअर मैन आता है, एक स्ट्रेंजर, वो उसके घर का दरवाज़ा खोलने में उसकी हेल्प करता है. Jake enters his house. He searches his pockets to give something to James Jones. He finds only 1 shilling in one pocket, but when he takes it out, it drops from his hand and rolls away. Being much too drunk, Jake is unable to find it anywhere. Okay, so he calls Jones in and tells him that he has sent ahead money in his pocket to give him anything. Okay, he hasn't had anything in his pocket to give him, but he offers Jones whiskey and tells him to drink as much as he can. Then Jones tells him that his wife, Mrs. Jones, works at that house as a charwoman. Then he begins to drink, so Jack tells him that he had a little quarrel with the lady with whom he spent the evening. So out of revenge he has taken away her handbag. अब उस अजनबी जो स्ट्रेंजर है, जो उसकी हेल्प करता है गेट खोलने में, उसको वो बताता है कि एक लेडी के साथ उसने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उसने जब उसे लिफ्ट नहीं दी तो उसने उसका गुस्से में और रिवेंज में उसने हैंडबैग उसके हाथों से छीन लिया और वो अपने साथ लेकर आया. वो पूरी स्टोरी उस जॉन्स को बताता है. Having said that much, Jack falls asleep. अब थोड़ी देर बाद वो सो जाता है. Jones goes on drinking wine, और जोन्स वो वाइन पीता है. Then suddenly he says that he will also get even with Jake, who has given him no money for his help. अब उसके अंदर भी एक रिवेंज की फीलिंग आ जाती है कि मैंने इसकी हेल्प की है इस डोर को अनलॉक करने में, पर इसने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो मैं भी इसके साथ वैसा ही करूँगा जैसे ताकि सब हिसाब बराबर हो जाए. अब वो क्या करता है, आफ्टर दैट ही टेक्स अ सिल्वर बॉक्स ऑफ सिगरेट फ्रॉम जैक्स डाइनिंग टेबल. वो क्या करता है, जैक के डाइनिंग टेबल से उस सिगरेट बॉक्स को, जो सिल्वर बॉक्स है, उससे उठा लेता है. एंड लेडीज़ पर्स, और उस लेडी का पर्स भी उठा लेता है
जो कि जैक बार्थविक लेकर आया था उस लेडी से। अंडर द इफेक्ट ऑफ वाइन ही पुट्स देम इनटू हिज पॉकेट, लाफ्स एंड गोज आउट। वो उसे अपनी पॉकेट में रखता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द लेडी कॉल्स एट जैक बार्थविक्स हाउस। शी इज़ कॉल्ड इन बाय जैक्स फादर जॉन बार्थविक द MP। इन हिज प्रेजेंस द लेडी डिमांड्स हर पर्स फ्रॉम जैक। अब वो जो लेडी है जिसका पर्स जैक लेकर आता है वो उसके घर पर आ जाती है और अपना बैग वापस मांगती है जैक बार्थविक से। ही ट्राइज टू से बिफोर हिज फादर दैट ही डिड नॉट टेक द हैंड बैग कंटेनिंग द पर्स। अब वो कहता है, उसके फादर के सामने वो कहता है कि उसने उसका पर्स नहीं लिया है, जिसमें उसका हैंड बैग नहीं लिया है जिसमें उसका पर्स रखा हुआ था। द लेडी देन थ्रेटन्स दैट शी विल गो टू पुलिस। अब वो धमकी देती है कि वो पुलिस के पास चली जाएगी। जॉन बार्थविक हिज फादर is afraid to see that a police case against his son will destroy his reputation। अब उसे लगता है कि उसके बेटे के अगेंस्ट यदि कोई FIR यदि कोई चार्ज लग गया, ओके, पुलिस ने यदि कुछ इसके लिए कोई केस कर दिया तो उसकी रेपुटेशन वो है स्पॉइल हो जाएगी। उसके फादर ऐसा सोचते हैं। So he gives the lady 8 pounds as a settlement price for her purse and the money it had। इसलिए उसको पर्स का उसकी जो भी वर्थ होती है उसके पर्स की या जो भी पैसा उसके पास होता है, मनी अमाउंट होता है, वो उसके फादर उसको दे देते हैं उस लेडी को। देयर आफ्टर द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज़ डिस्कवर्ड। उसके बाद जो सिल्वर बॉक्स की जो चोरी है उसे उसकी तलाशी उसका डिस्कवर किया जाता है, उसे खोजा जाता है कि आखिर वो सिल्वर बॉक्स कहाँ गया है, उसकी तलाश शुरू कर दी जाती है। द पुलिस इज़ इन्फॉर्म्ड। ओके, रॉबर्ट स्नो द पुलिस डिटेक्टिव सस्पेक्ट्स दैट मिसेस जॉन हैज़ स्टोलन द सिल्वर बॉक्स ऑफ सिगरेट। अब वो जो रॉबर्ट स्नो है वो कहते हैं कि शायद मिसेस जॉन ने वो जो सिगरेट का बॉक्स है वो चुरा लिया है।